Hi everyone, I hope you guys are doing well. As you know that we are the finance professionals, so we must know how the market works. Also, we have studied a lot of market aspects in a strategic financial management. So today I am here to share my knowledge with you all regarding the mutual funds, and this is a very basic video. I might share more knowledge with you in the upcoming videos. Before starting this video, make sure that you have subscribed my channel and hit the bell icon as well. So without wasting much time, let's begin. In this video, you will get to know about what is mutual fund and the need to invest in mutual funds. So let us take a very basic example first. Suppose you want to go to the office and you have your own personal car. Now you have to decide कि पर्सनल कार से आप कौन से रूट से जाएंगे ऑफिस, किस टाइम पे आप घर से निकलेंगे एंड किस टाइम तक आपको ऑफिस पहुंचना है. ये सब आपको खुद डिसाइड करना है एंड यू हैव टू ड्राइव योरसेल्फ, राइट. बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू डोंट हैव अ कार, we are taking an example, and you book the cab to go to the office, then it's the driver's responsibility to take you to the office and it's driver's responsibility to choose the route as well. बट आप पीछे बैठ के आराम से इंजॉय कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है बिकॉज ड्राइवर विल ड्राइव द कार, राइट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक मार्केट एंड द म्यूचुअल फंड्स. इन स्टॉक मार्केट यू हैव टू रिसर्च about a particular stock before investing in it, but in mutual funds there is a mutual fund manager who will invest your money and decide when to invest, when to sell, and everything. So you don't have to take any tension when you invest in mutual funds because it have the mutual fund managers who are experts in that. Okay, let us take another example, a very simple example which will help you understand how the mutual fund works basically. So there is a shopkeeper who sells the chocolate of around 40 rupees and the box contains 12 chocolates. 40 रुपीज़ का चॉकलेट बॉक्स है, 12 उसमें चॉकलेट्स हैं और आप और आपके 3 फ्रेंड्स और हैं एंड यू हैव 10 रुपीज़ ईच. 40 रुपीज़ किसी के पास नहीं है, आप इंडिविजुअली उसको परचेज नहीं कर सकते हैं. तो आपने क्या किया, आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया, ठीक है. 40 रुपीज़ आपने 10 रुपीज़ करके कॉन्ट्रीब्यूट किए और आपने वो चॉकलेट बॉक्स ले लिया. नाउ इफ यू डिवाइड 40 बाई 12 देन 3.33 रुपीज़ की चॉकलेट हर इतनी यूनिट्स सबके पास आ गई चॉकलेट की. तो हर कोई जो आपका फ्रेंड है वो ओनर बन गया उस चॉकलेट बॉक्स का, सबके पास डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया. बट अगर आपको इंडिविजुअली कहीं इन्वेस्ट करना था, आपको वो चॉकलेट परचेज करनी थी, तो आप नहीं कर सकते थे. ऐसे ही इफ यू हैव टू परचेज अ शेयर विच कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज़ एंड यू हैव ओनली 40 रुपीज़, तो ऐसे ही देर इज अ पूल ऑफ अराउंड 100 पीपल जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू द म्यूचुअल फंड. एंड उसके बाद म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड री इन्वेस्ट दैट मनी इनटू द मार्केट अपॉर्चुनिटीज. लाइक म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन इक्विटी, दे इन्वेस्ट इन डेट एंड दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन हाइब्रिड मोड, दैट इज हाफ ऑफ इक्विटी और हाफ ऑफ डेट और सम अमाउंट इन इक्विटी एंड सम अमाउंट इन डेट, दैट इज व्हाट वी कॉल हाइब्रिड मोड. ऐसे करके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं. उसके बाद द प्रॉफिट विच इज अर्न बाय इन्वेस्टिंग आर मनी बाय द म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इन द मार्केट, वो प्रॉफिट कहाँ जाता है, वो प्रॉफिट आएगा तो हमारे पास ही जो भी यूनिट होल्डर्स हैं उनके पास आएगा. बट द पॉइंट इज दैट विल दे गिव द होल प्रॉफिट मनी टू यू? नो, दे आर नॉट देयर टू इन्वेस्ट और अप्लाई देयर एक्सपर्टाइज just to give you profit free of cost. So what the mutual fund do basically is that they deduct a certain amount which we also call the expense ratio to pay the fees of the mutual fund managers, right. उनको भी तो थोड़ा फीस पे करनी होती है ना, तो वो थोड़ा सा डिडक्ट करके देते हैं. that is called expense ratio and it varies from 1 to 3%. So I hope this is clear now that how the mutual fund works. Now we are coming to the point why to invest in mutual funds or the need to invest in mutual funds. First point is that risk diversification. रिस्क डाइवर्सिफिकेशन कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी बड़े शेयर में इन्वेस्ट करना है, अब वो चॉकलेट बॉक्स आप नहीं ले पा रहे थे 40 रुपीज़ का अकेले, ऐसे ही अगर आपको किसी बड़े शेयर में इन्वेस्ट करना है और आप नहीं कर पा रहे हो, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं, लार्ज साइज, मिड साइज, स्मॉल साइज कंपनीज हर जगह वो इन्वेस्ट करती हैं. तो आपका जो पोर्टफोलियो बनता है वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है अगर आप एक म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि दे इन्वेस्ट इन मल्टीपल कंपनीज. तो आपका जो है वो रिस्क जो है वो कम हो जाता है, इसलिए आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, राइट. कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट एडवाइस. म्यूचुअल फंड में अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी शेयर में जाएंगे तो आपको एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी पड़ेगी, आपको सब कुछ खुद देखना पड़ेगा. बट इन म्यूचुअल फंड दे ऑलरेडी हैव द एक्सपर्ट्स विद देम, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जिनको हम बोलते हैं, तो वो खुद ही देखते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है. बट
व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, ये तो समझ में आया कि म्यूचुअल फंड ऐसे इन्वेस्ट करता है, बट द पॉइंट इज दैट कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, राइट? सो आई ऑल्सो गेट कन्फ्यूज. वट आई डिड इज दैट आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन टॉप फंड्स. टॉप फंड्स में इन्वेस्ट करने के बाद बहुत वॉलेटिलिटी दिखी मुझे उनमें, टॉप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बाद, और उसके बाद कहीं ना कहीं आई वॉज सफरिंग लॉसेज एंड आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट. तब मुझे समझ में आया कि बेटर रिटर्न्स के चक्कर में टॉप फंड्स के पीछे भागना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. देन आई गॉट अ मेंबरशिप टू 80 मनी जीनियस. 80 मनी जीनियस आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टाइम में रिकमेंड करता है डिफरेंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज, और फ्री है पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करते हैं ना मिक्स ऑफ लार्ज मिड साइज स्मॉल कंपनीज, इंटरनेशनल इक्विटीज अलॉन्ग विद द डेट एंड गोल्ड इंडेक्स फंड्स. और फिर इस मिक्स को मार्केट के हिसाब से चेंज करता है जिससे कि आपको मिल सकें बेटर रिटर्न्स. और क्या है वो बेटर रिटर्न्स? If someone had invested in Genius high growth mutual fund strategy for any 7 years in the last 15 years, he would have earned an annual return of 16.1%. तो अगर आपको भी चाहिए better returns तो आप भी बन सकते हैं ET Money Genius member now. The link is in the description. Coming to the third point regarding the advantages of the mutual fund is that there is very smaller capital required. That is, you can start investing in mutual fund with rupees 100 only. Yes, you have heard it right. You can start investing in mutual fund with 100 rupees only. So ज़्यादा कैपिटल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए you can go with mutual funds. Also one another advantage of investing in mutual fund is that disciplined investing. That is, you can invest a minimum amount every month and आपको सेविंग में वो हेल्प करेगा. देर इज वन थिंग कॉल्ड दैट इज SIP विच विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन द लेटर वीडियोज. अगर आप SIP कर लेते हैं, वट इट डज इज दैट इट डिडक्ट्स अ सर्टेन अमाउंट विच यू हैव फिक्स्ड फॉर दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड एंड म्यूचुअल फंड विल डिडक्ट इट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट एवरी मंथ, राइट? तो ऐसे आप एक सेविंग परस्पेक्टिव से और रिटर्न्स के परस्पेक्टिव से आप ऐसे SIPs कर सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहाँ पे आप डिसिप्लिन रहेंगे इन्वेस्टिंग में, राइट? सो दिस इज ऑल. आई होप नाउ दिस इज क्लियर दैट व्हाट म्यूचुअल फंड्स आर, हाउ द म्यूचुअल फंड वर्क्स एंड द नीड to invest in mutual fund. So if you like the knowledge which I have shared with you, then do like the video, share it with your friends and let me know in the comment section in any case of queries. So see you all in the next video. तब तक के लिए take care. See you soon.